इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डेनमार्क बेस्ड एक फ्रेंड हैं सुशांत सिंह राजपूत के। उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो अब तक उनके किसी दोस्त ने नहीं बताई। इस इंटरव्यू को मैं पढ़ रहा हूं republicworld.com पर, क्योंकि रिपब्लिक ने ही एरियन रोमल नाम है इनका, म्यूजिक एंटरप्रेन्योर हैं, डेनमार्क में रहते हैं, और उन्होंने कुछ खास बातें बताई हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ड्रग थ्योरी चल रही है, इसलिए पहले मैं इनके इंटरव्यू के उस हिस्से पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा जिसमें लिखा गया है, एरियन recalled the first time he met Sushant and said, "See, I can tell you about the story when I met Sushant for the first time, actually. I think it was around 4 to 5 years ago when he was living in Malad. I met him at a party. So I didn't know who Sushant was. I was sitting next to him actually, and I had a drink in my hand. And I was looking at him and I was like, bro, where's your drink? And he was like, nah, I'm not drinking. He showed me a box, a tiffin box, where he had his diet food. He told me that he had to eat it to take care of his health. And I was like, one drink won't damage your body. I said it. I said it as a joke. He then told me that he had to take his diet seriously. Just because you are different, that doesn't make you sick. आप इस इंसिडेंट को सोचकर अब ये बताइए कि आज जो लोग उनको ड्रग एडिक्ट करार दिए जाने की बातें कर रहे हैं, उनके सामने ये एरियन का जो खुलासा है वो कितना बड़ा खुलासा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो जब भी मिलते थे टेक्नोलॉजी की बातें करते थे, बहुत सारे आइडियाज़ वो डेवलप करना चाहते थे। एरियन ने ये भी बताया कि वो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐप डेवलप करना चाहते थे जिससे उन लोगों को मदद मिल सके जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, जो सिर्फ बोल सकते हैं। तो ऐसी बातों पर उनकी चर्चाएं होती थीं और वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, ऐसा एरियन का कहना है। वो इसी इंटरव्यू में आगे लिखा हुआ है, I had a conversation with this guy and I feel really bad about what happened when they started calling him a drug addict and said things like he was helpless, he needed help, someone to take care of him. I was like, that doesn't make sense in my head. That is not the picture I have of him. In the tech world, trust me when I'm telling you guys one thing, that you don't have time to eat. You can't just be this person and still think about quantum physics. You can't think about AI, artificial intelligence. I'll give you an example. He was talking about MongoDB. I want to ask the Bollywood people that do you know what MongoDB is? आप जाकर सर्च कीजिए। और एरिन का दावा है कि बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग MongoDB के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन सुशांत जानते थे क्योंकि वो टेक्नो सेवी थे और बहुत सारी नई चीज़ों पर अक्सर रिसर्च किया करते थे। वो आगे कहते हैं, his intelligence was a little bit beyond normal. Just because he was behaving differently, he was saying different words or he was using different ways of speech doesn't make him different or depressed. Arian was further heard talking and highlighting in the conversation that he was wary of people stealing his idea. उन्होंने कहा कि अगर मजाक मजाक में कभी मैं उनसे पूछता भी था कि तुम्हारा आइडिया क्या है, मुझसे शेयर करोगे, तो वो कहते थे नहीं, अगर मैंने तुमसे शेयर किया तो तुम उसको चुरा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में ये बात थी कि जो मेरे आइडियाज़ हैं अगर किसी और को मिल जाएंगे तो उसे चुरा सकता है। और अब सुशांत के जाने के बाद जिस तरह से हमने कुछ चीज़ें अपने आसपास नई लॉन्च होती हुई देखी, वो उस तरफ ही इशारा करती हैं कि क्या कहीं इनका आपस में कोई संबंध तो नहीं है। वो आगे लिखते हैं, I always enjoyed having conversations with him in those parties when he was speaking more about programming languages, programming codes, ideas of the future that will be digital. And he was explaining to me how he wants to build things and all. I always asked him honestly, so what's your idea? He was like, nah, I'll not tell you. If I tell you, you're going to steal it and make it. So when I hear people saying that he had mental health issues, he was depressed, he was bipolar, I don't see it that way. I just see a guy who was focused in his own way and his own world.
वेयर ही वॉन्ट्स टू बिल्ड समथिंग इन टेक्नोलॉजी। तो देखिए किस तरह से घुमा फिरा कर आप लोगों के सामने कहानी पेश की गई, लेकिन जो सच्चे दोस्त हैं वो आज भी याद करते हैं सुशांत को एक टेक्नो सेवी माइंड के तौर पर, एक ऐसा स्टार जो न सिर्फ बॉलीवुड में स्टार था बल्कि वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, डांस के फील्ड में, सब जगह स्टार था। क्या सुशांत बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों को इनसिक्योर फील करा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत के पास कुछ ऐसे आइडियाज थे जिनको पेटेंट कराकर वो दुनिया भर में नाम कमा सकते थे और कुछ लोगों को ये रास नहीं आया? बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। देखिए जिस तरह की दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत जी रहे थे, वो दुनिया अक्सर एक दूसरे लोगों को इनसिक्योर कर देती है, और ख़ासकर तब जब आपके पास लुक्स के अलावा दिमाग भी इतना तेज़ हो, इतना शार्प हो, तो जाहिर है उनके आसपास बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे और कोई नहीं जानता कि किस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन एरियन के इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि ज़रूर बहुत सारे लोग थे जो उनके आसपास उनकी चीज़ों को, खासकर उनके आइडियाज़ को चुराना चाहते थे, और बहुत कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपने आसपास के लोगों से शेयर करके, एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने अपने आसपास ही अपने दुश्मन इकट्ठे कर लिए थे। और फिर जो कुछ भी हुआ, फिलहाल उसकी तो अभी जांच हो रही है। लेकिन एरियल का ये इंटरव्यू इस बात को साफ बताता है कि वो लोग जो किसी भी तरह से उन्हें ड्रग एडिक्ट साबित करने पर तुले हुए हैं, वो एक सरासर बेबुनियाद बात है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को थोड़ा वक्त निकाल कर ये इंटरव्यू पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बहुत मेन पॉइंट्स बताए हैं इस इंटरव्यू के। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो परत दर परत अब निकल कर आ रहा है, और अब हम सुशांत के जाने के बाद अब हम उन्हें बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं।